Good morning, students. Today we are going to read or discuss the new topic, that is colloid. So before we proceed the colloid, we should know the difference in between first one true solution, second one colloid, and third one suspension. Mainly, there are two components of a solution. First one is called solute, and second one is solvent. Okay. When the size of the solute particle is very small, or you can say the diameter range is less than 10 raised to power minus 9 meter, then the solution comes in this category, that is called the true solution. For example, the solution of the salt in water, okay, solution of the sugar in water, ये सभी इसी टाइप में आएंगे. सेकेंड वन हम ये लेते हैं सस्पेंशन. व्हेन द solute particles का जो साइज है, when it is very large, okay, and it is so large that when it is kept for some time without any disturbance, the solute particle deposit at the bottom and the solvent particles separate from the solute particles. So for example, the solution of the sand with water, okay, तो अगर हम इसको थोड़ी देर तक रख देंगे तो आफ्टर सम टाइम सैंड विल डिपॉजिट एट द सरफेस एट द बॉटम एंड द वाटर विल सेपरेट. सो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सस्पेंशन. ओके, बट व्हेन द range of the diameter of the molecules comes in this 10 raised to power minus 9 meter to 10 raised to power minus 6 meter. अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स के साइज इस रेंज में है तो जो बनने वाला सॉल्यूशन है दैट इज कॉल्ड colloid एंड इट इज क्वाइट स्टेबल. अगर इसको हम थोड़ी देर तक रखेंगे तो इसमें ऐसा नहीं है कि आफ्टर सम टाइम द सॉल्यूट पार्टिकल डिपॉजिट एट द बॉटम. ठीक है, यहां लेकिन हम जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है कॉलॉइड्स के केस में इनको डिफरेंटली हम नेम दिए गए हैं. जो सॉल्यूट है विच इज डिस्पर्स, और यूं कह सकते हैं विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट कंपोनेंट which is dissolved. So this is called dispersed phase. Dispersed phase. Okay. And the solvent, this is called dispersion medium. Is it clear? Very simple. So in simple words we can define the colloids. The colloids is a solution in which a phase that is called dispersed phase is dispersed in a particular compound that is called dispersion medium is known as colloid. Okay. Now we will discuss the type of the colloids. Okay. The colloids can be divided in three on the basis of three types. Okay. First one on the basis of the phase of dispersed phase and dispersion medium. Dispersed phase और dispersion medium की state, whether it is solid, liquid or gas, इसके आधार पर हम इनका बाइफर्केशन कर सकते हैं. दूसरा इंटरेक्शन among the molecules, among the
molecules of dispersed phase and dispersion medium. Is it clear? And third one, on the basis of size of molecules of dispersed phase. Is it clear? So first one, we will take the bifurcation, or you can say the types of the colloids on the basis of the phase of dispersed phase and the dispersion medium. ठीक, यहाँ हम लेते हैं सबसे पहले dispersed phase and here dispersion medium. Okay. When both dispersed phase and dispersion medium are solid, so such colloids are called solid salts. Solid salts. Okay. Examples are colored stones, etc., colored glasses हम ले सकते हैं इसमें. ठीक है. नेक्स्ट केस, अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड हो और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड हो, ओके, तो दिस इज आल्सो वन काइंड ऑफ सॉल्ट. लिक्विड सॉल्ट बोल सकते हैं इसको सॉलिड सॉल्ट के बजाय, क्योंकि यह लिक्विड सॉल्ट बनेगा. और इसके एग्जांपल्स में हम पेंट एक्सेट्रा इन चीज को ले सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड हो और डिस्पर्सन मीडियम गैस हो, तो जब भी डिस्पर्सन मीडियम गैस होगा डेफिनेटली उसको हम एरोसॉल बोलेंगे. ये एरोसॉल है. एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं सॉलिड में, जैसे कार्बन पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, एंड दे फ्लोट इन एटमॉस्फेयर. एयर में अगर फ्लोट करते हैं तो इस टाइप से जो कॉलॉइड बनेगा वो क्या कहलाएगा? एरोसॉल कहलाएगा. ठीक है. और इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं डस्ट लिख सकते हैं, स्मोक लिख सकते हैं, एटसेट्रा. ओके. नाउ नेक्स्ट केस, when dispersed phase is liquid and dispersion medium is solid. Okay. डिस्पर्सन मीडियम यहाँ पे हमने सॉलिड लिया है और ये लिक्विड लिया है. ठीक है ना. तो इससे जो बनने वाले हैं उसको बोलते हैं जेल. ठीक है. इसमें इस एग्जांपल में हम ले सकते हैं चीज है, बटर है, वो इसी इसमें आएगा. चीज, बटर है, एक्सेट्रा. क्यों? क्योंकि इसमें देखिए डिस्पर्स फेज की क्वांटिटी कम होती है. ठीक है ना. ऐसे ही और जो डिस्पर्सन मीडियम है उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है. तो जैसे चीज है, चीज में आप देखेंगे थोड़ा सा उसको स्क्वीज करेंगे तो उसमें से थोड़ा सा वाटर निकलेगा. ठीक है ना. तो वाटर क्या है उसमें? डिस्पर्स है. ठीक है ना. तो सच टाइप दिस इज कॉल्ड जेल. ठीक है ना. नेक्स्ट, लिक्विड है और लिक्विड में ही डिजॉल्व है, तो दिस इज कॉल्ड इमल्सन. इसके एग्जांपल्स में हम ले सकते हैं हेयर क्रीम है और अपना मिल्क एक्सेट्रा, वो सभी इसी कैटेगरी में आएंगे. ठीक है. लिक्विड है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम गैस. तो जब भी गैस डिस्पर्सन मीडियम होगा तो उसको हम एरोसॉल बोलेंगे. ये एरोसॉल. और इसके एग्जांपल्स पे अपन ले सकते हैं लिक्विड है और वो गैस में फ्लोट कर, मीन लिक्विड पार्टिकल्स जैसे फॉग है, मिस्ट है,
या जो इंसेक्टिसाइड्स का जो स्प्रे है, ठीक है ना, वो सभी इसी कैटेगरी में आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन डिस्पर्स फेज गैस हो और डिस्पर्सन मीडियम हमारा सॉलिड हो। तो इसमें भी इसको भी सॉल्व ही बोलते हैं, एरोसॉल बोल सकते हैं इसको भी। और इसका एग्जांपल्स अगर लें तो जैसे एयर है, गैस है और किसी सॉलिड उसमें है, तो जैसे कि पिमिक स्टोन वगैरह लेते हैं, पिमिक स्टोन है, आप देखेंगे पिमिक स्टोन में कुछ वो पोर्स होते हैं, उन पोर्स में क्या होती है, एयर भरी रहती है, एयर उसमें फिल्ड रहती है। तो ये भी एक टाइप का सॉलिड है। ठीक है, नेक्स्ट लिक्विड डिस्पर्स फेज गैसियस हो और ये डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड हो। मीन्स गैस किसी लिक्विड में है तो इसको बोलते हैं फोम। ठीक है ना, फोम बनते हैं और इसके कई एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, जो सोप के, लेदर एटसेट्रा हैं, वो सभी इसी रेंज में आएंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ bifurcation of the colloids on the basis of the phase of the dispersed phase and the dispersion medium. Okay, अब हम दूसरी टाइप से colloids का bifurcation करेंगे। और वो है on the basis of the interaction in between the molecules of dispersed phase and the dispersion medium. Second one, interaction between dispersed phase and dispersion medium. Okay, मेनली जब हम इसकी बात करते हैं दो टाइप के colloids होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड लायोफिलिक colloids and second one is called lyophobic colloids. Okay, बहुत सिंपल से इनमें डिफरेंस है। लायोफिलिक वर्ड से ही पता लग रहा है, फिलिक मीन्स लिक्विड लविंग। ओके, लिक्विड लविंग। ठीक है, दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, लिक्विड लविंग होने की वजह से दे कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड। सेकेंड वन, जो डिस्पर्सन मीडियम है, जनरली इसमें कुछ भी डिस्पर्सन मीडियम को जब हम इवेपोरेट कर देते हैं तो उसके बाद में जस्ट बाय एडिंग द डिस्पर्सन मीडियम वी कैन रीजनरेट द colloids. मीन्स दिस इज इजीली रिवर्सिबल। तो क्या क्या प्रॉपर्टी है लायोफिलिक colloids में? लिक्विड लविंग है, मीन्स इसकी कोगुलेशन में बहुत टाइम लगता है, मीन्स आप ऐसे कह सकते हैं स्टेबल, नॉट इजीली प्रेसिपिटेटेड। लिक्विड लविंग है, इजीली बना सकते हैं। एक बार अगर उसका जो डिस्पर्सन मीडियम है वो अगर इवेपोरेट कर दिया जाता है तो जस्ट बाय एडिंग द डिस्पर्सन मीडियम यू कैन रीजनरेट स्टेबल फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, अगर हम उसको जैसे हमारे गम का सॉल्यूशन ऑफ गम, ओके, तो अगर हम इसको लॉन्ग टाइम तक रखे रहेंगे तो इट इज इन स्टेबल कंडीशन। ऐसा नहीं है कि ये
उसमें से डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेस अलग हो जाए। किसी कारण से अगर उसके जो लिक्विड पोर्शन वाटर पोर्शन है उसको हम इवेपोरेट कर देते हैं, तो जस्ट बाय एडिंग द वाटर वी कैन रीजनरेट द सॉल्यूशन ऑफ द गम। ओके, एंड लायोफोबिक, आप नाम से ही पता लग रहा है, फोबिक मीन्स लिक्विड हीटिंग, लिक्विड हीटिंग। कहने का मतलब ये है, ये डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम इन दोनों को मिक्स करने के लिए वी हैव टू यूज स्पेशल मेथड्स, मीन्स इनको बनाने के लिए स्पेशल मेथड्स यूज करने पड़ते हैं। एंड दे आर नॉट इजिली रिवर्सिबल, मीन्स अगर वंस दे कोगुलेटेड एनी हाउ, अगर वो कोगुलेट हो जाते हैं या प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, तो जस्ट बाय एडिंग द डिस्पर्सन मीडियम इन डिस्पर्स फील्ड वी कैन नॉट रीजनरेट दैम। ओके, फॉर एग्जाम्पल द सॉल ऑफ द गोल्ड सॉल्ट, गोल्ड सॉल्ट इसी टाइप का है, वो लायोफोबिक कैटेगरी में आता है। वंस अगर उसको हमने प्रेसिपिटेट कर दिया तो उसको जस्ट बाय एडिंग द गोल्ड इन वाटर वी कैन नॉट प्रिपेयर इट। ओके, लिक्विड हीटिंग है, इजीली प्रिपेयर्ड नहीं है, इसके लिए हम स्पेशल मेथड्स यूज करते हैं। रिवर्सिबल है लेकिन उसी कंडीशन में जब हम उसी मेथड को दोबारा यूज करें, अदरवाइज सिंपली डिस्पर्स फेज को डिस्पर्सन मीडियम में मिक्स करने से हम उसको नहीं बना पाएंगे। एंड इट इज नॉट स्टेबल फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत इसके थोड़े से भी उसमें किसी भी टाइप का इलेक्ट्रोलाइट अगर ऐड हो गया तो इट कैन बी कोगुलेट इजीली। ओके, नाउ द थर्ड टाइप, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।